जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी, एक बार फिर से आपका YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए, टुडे भी आवर टॉपिक इज फेडरलिज्म। क्लास 10th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को। टॉपिक सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। About the first chapter, whatever it is in the first chapter, power sharing, you have to read about the Belgium and the Sri Lanka. If you are not watching my video, then go through that video and about the power sharing. That was the important terms for your examination. And now today we are going to discuss about federalism. Federalism, what is the federalism? The balance of power between central and state. Understood? And in this format, in the federalism, you have to read something about the vertical format of government. So, what is the vertical format of government? That is the vertical format of government. Then, what is the real definition? Now I am going to start the topic, and in the topic, I will tell you what is the real definition, what is the real way to follow the federalism in our country, and what the things we have to follow to decentralize our political system. Okay, now let's go. Federalism, in this chapter we will understood the vertical division of power. It's a overview of your chapter. Vertical division of power among different level of government, one of the major form of power sharing in modern democracy. Now, what is the federalism? The first topic yours. What is the federalism? So here I am going to start with the definition. Write it somewhere. Federalism is a system of a government in which the power is divided between central authority and various constituent unit of the country. That's your definition. Central authority and various constituent unit of the country. In the previous chapter आपने पढ़ा होगा what was happening कि we were studied about the two countries, Sri Lanka and Belgium. Then where the Sri Lanka represent himself a unitary government. आप यहाँ पढ़ेंगे कि श्रीलंका अपने आप को यूनिटरी गवर्नमेंट के तहत प्रेजेंट कर रहा है। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जहां एक आदमी जो वो सबसे स्टेट के या देश के सबसे हेड पोस्ट पे बैठा है, उसके पास बहुत ही एब्सोल्यूट पावर है और वो जैसा निर्णय ले लेगा पूरे कंट्री को ऐसा मानना पड़ जाएगा, भले वो डेमोक्रेसी से गया, मतलब ही इज हैविंग एब्सोल्यूट पावर। ये है यूनिटरी फॉर्मेट ऑफ द कंट्री या यूनिटरी फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, वहीं आप बेल्जियम को देख रहे होते हैं। बेल्जियम क्या करती है? बेल्जियम फेडरलिज्म को प्रमोट कर रही होती है, फेडरल गवर्नमेंट को प्रमोट कर रही होती है। अच्छा, दो तीन चीजें खास बात है फेडरलिज्म की। आप देखेंगे फेडरलिज्म में दो, जैसे यूनिटी ऑफ नेशन पे काम किया जाता है, इसके अलावा सभी इथनिक कंपोजिशन या डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट किया जाता है। अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, सिविल वॉर करेंगे, तो हम वैसे भी फेडरल नहीं बन पाएंगे। फेडरल का काम है युद्ध को टालना, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक पाला जाए, ऐसा टाइप का काम। तो ही है राणा का वंशज, मैं भी हूँ राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। चलिए आगे चलते हैं। About the Belgium was following here in your book. This topic is in your book, and so what is the keywords I am going to mention at here? You have to underline it. In our country, the concept of religious government were given constitutional power in 1993, by which देयर वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन अपने कंट्री में आप देखेंगे जो ये थर्ड गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट रूप से पावर दिया गया 1993 में। इससे पहले क्या हुआ करता था, ये थोड़ा स्टेट के अंदर आता था। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता था तो बहुत इंडिपेंडेंट होकर ये काम नहीं कर पा रहा होगा। सो दैट्स व्हाई इसको कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इसको पावर दी गई, ऑथराइज किया गया कि नहीं, वी ऑल्सो हैविंग अ थर्ड ईयर ऑफ अ गवर्नमेंट, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। चलिए, कुछ की फीचर होते हैं, आप अपने बुक में मेंशन करेंगे की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, हम उस पर चर्चा करते हैं।
देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला की फीचर क्या है, इसमें दो या उससे अधिक लेवल की गवर्नमेंट होते हैं। सेकेंड वन इज ईच टीयर हैज इट्स ओन जुडिक्शन। सभी टीयर के पास अपने अपने जुडिक्शन, अपने अपने क्षेत्राधिकार है, वो अपने अपने क्षेत्राधिकार पे काम करे, वो अपने क्षेत्राधिकार में वही पावरफुल है। सो दैट मीन्स कि अपने सब टीयर के पास अपने अपने खुद के जुडिक्शन है। Even in special matter of legislature, taxation and administration, that here it is some jurisdiction is mentioned at here कि इन सब क्षेत्रों में अपने क्षेत्रों में इनका अधिकार है। अच्छा, the third point is the existence and authority of each tier of government is constitutionally ग्रांटेड। तो जो भी अथॉरिटी मिल रही है इनको और जो भी इनका एग्जिस्टेंस है सब संविधान द्वारा इनको गारंटी के साथ मिली हुई है। अगला पॉइंट आप पढ़ेंगे, जैसे फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई भी संविधान में कोई चेंज करनी है तो या कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन में चेंज किया जाता है तो ये यहाँ पर लिखा है कि इन दोनों टीयर से बात की जाएगी। आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू थ्रू द चेंज। तो आगे चलते हैं। सम ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेशलाइज्ड टू इंश्योर इट्स फाइनल ऑटोनॉमी। तो इनकी फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी है ये भी इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे एकदम क्लियर कर दी गई है कि आपकी ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, आपकी ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। तो आप आपस में लड़ाई ना करें, आप सबके पास अपना अपना कंटिजेंसी फंड है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, आप यू विल डिसाइड। आप सेकंड चीज पढ़ोगे कि व्हाट इज द फेडरलिज्म ऑब्जेक्टिव्स। तो दो तरीके के ऑब्जेक्टिव आप पढ़ोगे और यू हैव टू मार्क एट योर book because it is important one. So first one is I was tell you the unity, promote the unity, and the second one is accommodate religious diversity, accommodate religious diversity. तो ये दो चीजें आप प्रमोट कर रहे होते हैं इन अ फेडरलिज्म। चलिए अब आप थोड़ा आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक में सेकंड टॉपिक आप शुरू करेंगे उसमें कि हाउ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा। तो सेकंड वन टॉपिक आप चल रहे होंगे, देयर आर द टू काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच फेडरलिज्म हैज बीन फॉर्म्ड। तो वहां आप पहला रूट पढ़ोगे कमिंग टुगेदर एंड सेकंड रूट पढ़ोगे होल्डिंग टुगेदर। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, जब आप कमिंग टुगेदर की बात कर रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे जो छोटे छोटे देश टाइप के हैं जिनके पास अपने खुद के बहुत ही ऑटोनॉमस पावर है, बहुत ही अधिकार है, वो सब लोग एक साथ मिलकर एक यूनिट बना ले। ठीक, तो जब छोटे छोटे देश कोई भी इंटेंशन हो कुछ किसी भी चीज के लिए, वो ये सब मिलकर एक साथ अपने आप को ये यूनिट बना ले, तो इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर। आप यूरोप की कंट्रीज को देख रहे होंगे, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर क्या है कमिंग टुगेदर का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल वो दे रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यूएसए में शुरू में 13 कॉलोनी थे, राइट नाउ 50 कॉलोनी, 50 स्टेट है, सब लोग मिलकर एक यूनिट बना ले रहे हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इसका कमिंग टुगेदर का। ठीक, हियर इट इज रिटन द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। एग्जांपल में स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर में आप पढ़ेंगे, होल्डिंग टुगेदर हमारा भी देश है। ठीक, आप देखेंगे अ लार्ज कंट्री, जैसे बहुत बड़े देश में, बहुत बड़ा आपने सपोज कीजिए कोई देश लेता है, उसमें छोटे छोटे स्टेट हैं, उन सब स्टेट को पावर बड़ा सा देश में दे दिया है। यहाँ मतलब स्टेट इतने ऑटोनॉमस नहीं है, सेंट्रल ने सबको पावर दे दिया है। तो ये तरीका है होल्डिंग टुगेदर का। तो हियर इट इज मेंशन कि अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट
and the national government, example of India, Spain, Belgium, पढ़े होगे। ठीक, here the जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटे, here वो लीडिंग पावर पे है और उसने सबको पावर डिवाइड की हुई है। ठीक, आगे आप पढ़ोगे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो इंडिया का फेडरल कंट्री क्या बनाता है, इसको पढ़ेंगे। थोड़ा इसमें क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री, जैसे आप इंडिया को देख रहे हैं कि कितना बड़ा देश है, कितनी डाइवर्सिटी है, और अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, अलग अलग रिलीजन है, फिर भी हम कैसे विविधता में एकता खोजकर अपने आप को फेडरल बनाते हैं और जिसके माध्यम से हम लड़ाई झगड़ा ना करें। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया हैड इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल ब्लडी पार्टीशन। बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े करने के बाद इंडिया को इतनी आजादी मिली है और इसका सम्मान कीजिए आप सब लोग। आजादी के बाद क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट को भी अपने में रखना था। चलिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन स्टेट। हमारे संविधान ने इंडिया को यूनियन स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। हम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मतलब फेडरलिज्म टर्म्स हमने यूज नहीं किया है, हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा नेशन। ठीक, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप थोड़ा लिखते रहिएगा। अगर आप ये एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यू मस्ट बी राइट समथिंग। सन द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर 2 tier ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज, आप जहां भी देखेंगे फेडरलिज्म का एग्जांपल, 2 tier ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल एंड स्टेट। हमारे देश में, हमारा देश थोड़ा बड़ा है। लेटर अ 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो जब हमारी संविधान बनाई गई थी तो उस टाइम पीरियड में हमने, मतलब संविधान सभा ने 2 tier सरकार की ही बात की थी। बाद में हमको ऐसे लगने लगा कि नहीं, डेमोक्रेसी का या पॉलिटिक्स का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तब हमने 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट को प्रमोट किया। एंड वो 3rd tier कौन है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। दिस थ्रस इट कंटेन 3 लिस्ट। तो ये सारे पावर को हमने 3 लिस्ट में आप पढ़ेंगे। वो 3 लिस्ट आपने पढ़ी होगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंस लिस्ट। तो इस माध्यम से यूनियन लिस्ट, अच्छा चलिए डिस्कस करते हैं यूनियन लिस्ट क्या होता है। व्हाट इज यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट जब नेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे, बहुत नहीं, जो चीज नेशन के रूप में इंपॉर्टेंट है, उस लिस्ट में उस चीजों को रखा जाएगा, उस सब्जेक्ट को रखा जाएगा। ठीक, यहाँ एक डेफिनेशन है, आप यू हैव टू राइट समवेयर। नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसको कहाँ रखा जाएगा, यूनियन लिस्ट में। जैसे आप देखोगे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। करेंसी कोई स्टेट नहीं बनाता है, नेशन बनाता है। बैंकिंग नेशन का है। ठीक, स्टेट लिस्ट में क्या होगा, जो स्टेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट इशू होंगे उसको स्टेट डिस्कस करेगा। जैसे आप देखेंगे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शंस। इट इज रिटन इन योर बुक ऑल्सो, यू मस्ट बी अंडरलाइन दैट थिंग्स। बोथ लिस्ट पे कंकरेंट लिस्ट, दैट मीन्स कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग कानून बना सकते हैं। हाँ, अगर कभी क्लास की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट पर काम करेंगे, मतलब उसको अलाउ करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे। बोथ यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, बोथ यूनियन एंड स्टेट मेक द लॉ ऑन सब्जेक्ट्स mention if any kind of conflict with each other, the law made by the union government will prevail। हम कौन सा लॉ मानेंगे, प्रिवेल दैट मीन्स मान्य करना, कि कौन सा लॉ मानेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई होगी। आगे चलते हैं। रेसिड्यूरी लिस्ट, अच्छा बहुत सारी चीजें ऐसी भी रही होगी उस टाइम पीरियड में जब लिस्ट बनाया जा रहा होगा, तो हो सकता है उस टाइम पीरियड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत सरकार के, मतलब उस समय थी ही नहीं, भारत सरकार नहीं उस समय थी ही नहीं।
जैसे आप देख रहे हो कि आज ये गेम वेम आप खेलते हो, कंप्यूटर चलाते हो, तो उस समय कंप्यूटर कहाँ था, नहीं था, इतना गेम होम सिस्टम कहाँ था, तो इस पे कानून कौन बनाएगा? अब तो ये आ गया ना। तो ऐसी दशा में इन सब चीजों पे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे यहाँ एक एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द न्यू थिंग्स कम इन आवर सोसाइटी which was not present at that time when the constitution was made। तो so right now उस पे कौन कानून बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? रेसिड्यूरी लिस्ट। आप इसको जानते रहिएगा। चलिए, ऑल स्टेट, आगे बढ़ते हैं। ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव अ आइडेंटिकल पावर। सभी के पास, मतलब आप देख रहे होंगे सबके पास एक समान बराबर ताकत नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो स्पेशल पावर एंजॉय कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे जगह हैं जो बहुत ही लिटिल पावर एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो स्टेट ज्यादातर बॉर्डर के पास जो स्टेट होते हैं उस या उन सबको थोड़ा स्पेशल पावर दी। स्पेशल पावर दैट मीन्स कि सरकार जब भी कोई वहां पे प्लानिंग करेगी, कोई भी योजना इम्प्लीमेंट करेगी, तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है, 10-20% वो लोग देते हैं, 10% आज 10 या 20 ऐसे टाइप का। मतलब कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे हैविंग अ स्पेशल, इट इज नॉट मेंशन इन योर बुक, ओनली दिस थिंग इज मेंशन कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे जो 371 के अंदर आते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल अथॉरिटी है जो इस स्टेट का आदमी नहीं है, वो यहाँ पर घर वर नहीं खरीद सकता है। आपकी किताब में ये लिखा हुआ है। बाकी सरकारी योजनाओं को प्रमोट ऐसे ही करती है। आफ्टर दैट राइट समथिंग जैसे अबाउट द असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, दे enjoy special power under certain provision of Constitution of India, जैसे आर्टिकल 371। अंडरस्टूड? तो क्या स्पेशल प्रोटेक्शन है ये समझ लीजिएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंड है, राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल है, ठीक, इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स of this state cannot buy land or house here। तो those who are not a permanent resident of that state, they are not able to buy land at there। आगे चलते हैं। कुछ स्पेशल, ये तो स्पेशल हो गया। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही लिटिल पावर एंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे आप यूनियन टेरिटरीज को देख रहे होंगे। ये कोई सेपरेट स्टेट तो है नहीं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पूरी पावर, मतलब वही कॉन्स्टिट्यूशन वहां के देश को, वो मतलब वहां के प्लेस को सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रहा होता है। तो हियर यू हैव टू मार्केट समवेयर, जैसे इट्स की वर्ड्स देयर, दीज स्टेट्स लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, द कैपिटल सिटी दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। These union territories do not have the power of a state. The central government has special power in running these areas। अच्छा, आगे थोड़ा पढ़ेंगे इसी के थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर कोई चेंजेस करना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में लिखा होगा कि जो हमने बोथ हाउस बनाया है, राज्यसभा लोकसभा, उन दोनों में बातचीत चर्चा करने के बाद, वो भी 2/3 बहुमत से, जब मेजोरिटी का सिस्टम ही होगा, तो कोई चेंज किया जाएगा। जैसे यहाँ इट इज मेंशन कि इफ एनी चेंज रिक्वायर्ड टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट देन इट हैज टू बी फर्स्ट passed by both the House of Parliament with at least 2/3 majority। तो 2/3 majority के माध्यम से वो दोनों हाउस में बिल पास होगा। आफ्टर दैट इट विल बी इम्प्लीमेंट। और जुडिशरी के बारे में लिखा है कि जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जो मतलब करता है, जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कभी आप देखोगे कि लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई भी चीज इंप्लीमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करना है, उसके प्रोविजन को इंप्लीमेंट करना है, तो या अगर कोई इस पर डिफॉल्ट आ गया तो जुडिशरी के पास आप आएंगे। तो उसके जुडिशरी के बारे में लिखा है, जुडिशरी plays an important role in the overseeing the implementation of constitutional provision and procedure। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, प्रोसीजर है, जिसको जैसे ग्रांट मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इन सब को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो मतलब नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा, तो वो जुडिशरी के पास जा सकता है, वहां ओवरसी की जाएगी। ठीक, जुडिशरी देखेगा इस मैटर।
अब हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, आपका ये अलग टॉपिक है, यहाँ पे चलते हैं। एकदम मस्ती के साथ पढ़िए, जल्दी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कम समय में ज्यादा चीज बताई जा सके। बाकी आप व्हेन यू रीड योर बुक दिस ऑल थिंग्स इज इन द बुक, एंड कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपके ही जो ये लिंक है वीडियो का, यूट्यूब का, उसी के डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी प्रोवाइड कराने की, तो आप नोट्स भी वहां जाकर, मतलब जो नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूं, आप उस नोट्स को वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। The spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became a shared ideal in our country। तो क्या स्पिरिट है फेडरलिज्म की? दो चीज यहाँ पर चर्चा हो गई है कि हमें रिस्पेक्ट करना है डाइवर्सिटी की, एंड सेकेंड वन इज कि हमें एक साथ रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट सिर्फ संविधान के माध्यम से ही कॉन्स्टिट्यूशन में या सिर्फ संविधान के माध्यम से ही एक देश में फेडरलिज्म नहीं अप्लाई की जाएगी। जरूरी है संविधान के माध्यम से क्योंकि कंट्रोल करना भी जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम फेडरल होंगे, जैसे आप यहाँ पर पढ़ोगे। ठीक, तो कुछ मेजर चीज है उसके बारे में, जैसे आप पहला टॉपिक पढ़ोगे लिंग्विस्टिक स्टेट। तो पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय क्या चल रहा था हमारे देश में कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट का निर्माण करने के बारे में बात चल रही थी। जैसे आप देखोगे द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो ये क्रिएशन जो किया जा रहा है ये पहला बहुत ही मेजर टेस्ट है। इवन कि आप देखोगे कि इसका मतलब क्या होता है कि दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। जो जिस लैंग्वेज को बोलता है वो उस लैंग्वेज के स्टेट में रह सके, तो मतलब ऐसा प्रैक्टिस है ये। तो आप देखोगे कि सिर्फ लैंग्वेज के बेस में हमने कंट्री में स्टेट नहीं बनाए हुए हैं, इसके अलावा भी और भी इतने कंपोजिशन, ज्योग्राफी, इन सब माध्यम से भी हमने स्टेट बनाए हुए हैं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे नागालैंड, उत्तराखंड, इन सबके उदाहरण हैं। चलिए, जब ये भारत सरकार के तौर मतलब जब ये क्या कहते हैं लैंग्वेज बेस पे स्टेट बनाने की निर्माण हो रही थी, मतलब एक आंदोलन टाइप का हो रहा था, तो कुछ ऐसे प्रमुख लीडर थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर लैंग्वेज के बेस पे हमने स्टेट बना दिए तो कहीं ना कहीं ये हम अलगाववाद की भावना को प्रमोट कर रहे होंगे, या बाद में हो सकता है अलगाववाद जैसी सिद्धांत लोग फॉलो करने लग जाए कि नहीं हम अपने लोगों का देखेंगे, हम आप अपने लोगों का देखेंगे। ठीक ऐसी, लेकिन फिर भी स्टेट बना है और अच्छा ही हुआ है क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में आसानी हुई है और हमारे अंदर कोई अलगाववादी भावना नहीं है। एंड यू हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड इन योर बुक की बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज actually made the country more unite. Understood? In your answer you have to write at these things. तो एक अलग लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक हो गया, लैंग्वेज पॉलिसी। सेकंड वर्ड इज आप पढ़ोगे लैंग्वेज पॉलिसी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा। जस्ट बिकॉज आपको हो सकता नहीं वैल्यूबल लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है जो क्लास 10 का एग्जाम इस बार दे रहे होंगे उनके लिए वैल्यूबल है, तो कम से कम वही पढ़ ले आपके माध्यम से। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक बार आप लोग पूरा एनालिसिस कर लें और पूरा देख लें कि क्या क्या उसमें और चीज आपको इम्पोज करना है, क्या क्या चीज अपने आंसर राइटिंग में इम्पोज करना है, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करना है। तो आइए लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल, आप अपने संविधान में देख रहे होंगे कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज की ऑटोनॉमस पावर नहीं दी गई। कोई भी लैंग्वेज यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज हमारा कोई नहीं है। ठीक, और हिंदी के अलावा बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 21 और भी लैंग्वेजेस जो शेड्यूल लैंग्वेज में आते हैं हमारे संविधान में वर्णित है।
अगर आप सरकार के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट पे एग्जाम दे रहे होंगे तो आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, कहने का मतलब ये। अंडरस्टूड। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश, जब संविधान बनाया जा रहा होता है, ड्राफ्टिंग की जा रही थी, तो उस समय ये डिसाइड किया कि जो इंग्लिश का यूज है हम अगले 15 साल तक और करेंगे, उसके बाद हम हिंदी को ही कंटिन्यू कर देंगे 1965 तक। तब तक हम जो अलग हिंदी भाषी राज्य नहीं है कोशिश करेंगे कि वो लोग हिंदी बोलना सीख जाए या स्कूल खोलेंगे, मतलब ये सब काम किया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि 15 साल बाद जो नॉन हिंदी स्टेट है वो लोग द्रोह विद्रोह पे उतर आते हैं और वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम हिंदी को नहीं अप्रूवल देंगे, इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। तो फिर उसके बाद जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी सरकार थी उन्होंने देखिए रिजिडनेस को नहीं दिखाया। ये बहुत अच्छी बात है। हम फेडरल कंट्री क्यों है आप ये समझिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, लैंग्वेज इतना बड़ा इश्यू है ही नहीं, क्यों लड़ाई झगड़ा करना है, इट्स ओके। जिस लैंग्वेज में जरूरत हो आप उस लैंग्वेज में काम कीजिए, इंग्लिश में जरूरत है तो आप इंग्लिश में ही काम कर लीजिए, ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। आपको अपने आंसर में क्या लाइन लिखनी है, एक ऐड करनी है, वो लिखा है दिस फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। तो ये जो हमारे अंदर, ये हमारे नेशन के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसने श्रीलंका में जो इतने बड़े बड़े सिविल वॉर हुए हैं इनको एक बार में ही अवॉइड कर दिया। एक लैंग्वेज को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा ना करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप बात कह रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, किस लैंग्वेज में कह रहे हो डजंट मैटर। आगे चलते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा है सेंट्रल स्टेट। शुरुआत में क्या होता है, आप देखोगे कि जब भारत आजाद हुई तो उसके बाद कई सालों तक एक ही पार्टी की सरकार इंडिया में थी, तो स्टेट में भी थी। तो स्टेट अपना ऑटोनोमस पावर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा होता है। पहला पैरा यही लिखा हुआ है। सेकंड पैरा में आप आएंगे तो वहां पर क्या लिखा है कि धीरे धीरे क्या होता है कि स्टेट में अलग सरकार, अगर कभी स्टेट में अलग सरकार है और सेंट्रल में अलग सरकार है तो जो सेंट्रल में सरकार है वो स्टेट की सरकार को एकदम अंडरमाइन कर देते थे, अनदेखी कर देते थे। तो इससे क्या होता था, उसके पावर को जब अंडरमाइन कर देंगे तो ये एक फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है वो इस पे नहीं डिपेंड है। फेडरलिज्म किसको कहते हैं कि जब ईच सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट हैविंग अ देयर ओन पावर, शेयरिंग ऑफ पावर पे काम कर रही है फेडरलिज्म, ना कि अंडरमाइन पे, ठीक। तो यहाँ पर लेकिन कुछ सालों बाद जब कोलेजन वाली सरकार आने लग जाएगी, आप देखेंगे गठबंधन की सरकार आने लगेगी, तो रीजनल पार्टी जो है, अलग अलग पार्टी से आए हुए लोग हैं, गांव और मतलब अलग अलग प्रदेशों से आए हुए रीजनल पार्टी के लोग हैं, गठबंधन करेंगे तो वो पावरफुल हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद वो अपना स्टेट भी एकदम ऑटोनोमस पावर से चलाना है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकसभा में आए जब चुन कर आ गए हैं तो लोकसभा में चुनी हुई सरकार को प्रेशराइज भी कर रहे होंगे कि देखो हमारे स्टेट में अगर आप इंटरफेयर करोगे या हम ज्यादा हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम अपने लोगों को हटा लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो धीरे धीरे इट्स मीन कि रीजनल पार्टी के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ऑटोनोमस पावर पे काम करने लग जाएगा। तो ये भी फेडरलिज्म का एक एग्जांपल है कि चलिए कहीं ना कहीं से सही, स्टेट गवर्नमेंट की हैविंग अथॉरिटी टू रन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय देयर ओन पावर। अंडरस्टूड। चलिए अब ये था 3 जो आपने टॉपिक पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट था, लिंग्विस्टिक, सेंट्रल स्टेट एंड द लैंग्वेज पॉलिसी। अब आपका लास्ट टॉपिक शुरू होगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में कैसे हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया है। अब डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है कि राजनीति या चुनाव का जो पैटर्न है या डेमोक्रेसी है वो सबसे नीचे तबके तक, मतलब कई जगह तक पहुंच जाए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि केंद्र में ही जो व्यक्ति है सबसे पावरफुल है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब राजनीति और डेमोक्रेसी या इन सबको सब जगह पहुंचाना है। आप देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल इंडिया दे रही होती है, लेकिन इंडिया क्या कहते दे रही है, लेकिन इंडिया अभी भी उस पर काम कर रही है। बहुत बड़ी बात है, मतलब अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना है, वो काम करते रहना है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया इज वेरी वास्ट कंट्री, मेनी ऑफ स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। आप इंडिया के बारे में देखेंगे बहुत स्टेट हैं और
डाइवर्स है, डाइवर्सिटी है। इवन आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? लोकल गवर्नमेंट की जरूरत इसलिए है क्योंकि लोकल पीपल वहां की समस्याओं से अवेयर हैं और वो जानते हैं कि कैसे मनी को स्प्रेड करना है लोकल लोगों के बीच में और व्हाट इज द सॉल्यूशन। सो दैट्स मीन कि व्हाई लोकल गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट, आप इसलिए समझो। चलो, Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government. स्टेट गवर्नमेंट से बिलो एक अनदर पावर की जरूरत है जिसको आप कहोगे अपने लैंग्वेज में दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। थ्रस रिजल्ट आप देख रहे होगे कि थर्ड टियर ऑफ लोकल गवर्नमेंट पावर इट्स प्योर। चर्चा हो चुकी है कब बना कॉन्स्टिट्यूशन ने, कब इसको ग्रांट दिया, सारी चर्चा हो गई। बना बहुत पहले ही था, संविधान ने ग्रांट बहुत बाद में दिया है। ठीक, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अबाउट व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डेफिनेशन यू हैव टू मार्क इन योर बुक। लोकल पीपल ये कुछ समझते हैं क्यों, क्या क्या जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन करने की, या क्या जरूरत है लोकल पीपल को बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जो जिसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है। जस्ट बिकॉज लोकल पीपल को अपनी समस्याओं का बेटर नॉलेज होता है और इसके साथ साथ उनके पास बेटर आइडियाज होते हैं चेंज लाने के। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकल गवर्नमेंट बनाई जाए। ठीक, लोकल गवर्नमेंट में आप देख रहे होंगे कि पंचायत इन विलेज एंड म्युनिसिपैलिटी इन अर्बन। जो म्युनिसिपैलिटी आप टर्म सुनते हो वो अर्बन के लिए यूज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बहुत बड़े शहरों के लिए यूज होता है, तो और पंचायत ग्राम या गांव के लिए यूज होता है। ये टर्म आपको जानना जरूरी है। तो कुछ स्टेप हमने इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए टेकन किए हैं। 1992 में हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन पे अमेंडमेंट किया था तो उस समय कुछ स्टेप हमने क्या उठाए थे, आप इसको देखिएगा। जैसे रेगुलर इलेक्शन होगा, सीट को रिजर्व की जाएगी। आप मैं लिख देता हूं, आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप रेगुलर इलेक्शन। तो रेगुलर इलेक्शन इस पे काम किया जाएगा। एंड सेकेंड वन इज सीट्स रिजर्व रहेगी। रिजर्व किसके लिए है? ST SC OBC। और 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, ये तीसरा पॉइंट है। फोर्थ वन इज कि इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा। ये जो म्युनिसिपैलिटी या पंचायत का इलेक्शन होता है ये भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करता है इवन, बट कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। चलिए, और पांचवा पॉइंट लिखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। तो ये तो जनरल है, स्टेट गवर्नमेंट को तो शेयर करना ही है। कुछ की पॉइंट इसी पूरे टॉपिक में पैटर्न में लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन द स्टेट हैज ग्राम पंचायत। सभी विलेजों और ग्रुप ऑफ विलेजेस में आप देखोगे कि सब में ग्राम पंचायत है और ये ग्राम पंचायत का चुनाव डायरेक्टली होता है। देखेंगे गांव में वार्ड मेंबर बनाए जाते हैं, पंचायत का चुनाव होता है, डायरेक्टली चुनाव होता है। आगे ये चीज जानना जरूरी है कि पंचायत का चुनाव या पंचायत प्रेसिडेंट होते हैं, सरपंच होते हैं, इन सब का चुनाव लिख देता हूं मैं, सरपंच, इनका चुनाव डायरेक्टली किया जाता है। डायरेक्टली इट्स मीन कि हम लोग जाकर वोट देते हैं, पीपल जाकर वोट देते हैं। ठीक, अब कई सारे पंचायत, अगर बहुत सारे पंचायत मिलते हैं, वो एक टर्म इसमें और है, ये पंचायत या ये सरपंच किसके सुपरविजन में काम करते हैं? ये ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करते हैं। इसके बाद ये पॉइंट है और इसको एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से इंपॉर्टेंट समझिएगा कि कुछ ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाते हैं, एक साथ अगर आ जाए मिलते हैं तो समिति, पंचायत समिति बनाते हैं या ब्लॉक बनाते हैं या मंडल बनाते हैं। तो आप देखेंगे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, और ये जो चुनाव होता है इसमें वोट यही लोग देते हैं, सरपंच, प्रधान, BDC, ये लोग वोट देते हैं। सो दैट मीन्स कि ये इलेक्शन क्या हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ। ठीक,
ये कैसा इलेक्शन होगा कि द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन द एरिया। तो ये पंचायत मेंबर द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, हमारे द्वारा नहीं सेलेक्ट किए गए। समिति, मंडल प्रमुख। आगे चलते हैं। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर। अगर ये पंचायत समिति और मंडल एक साथ आते हैं तो ये क्या कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, जिला परिषद। जिला दैट मीन्स की डिस्ट्रिक्ट। हाँ, अब जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो जिला परिषद का पावरफुल, मतलब वही वो हेड पर्सन होता है। जिला परिषद का हेड पर्सन वहां का चेयरपर्सन है। ठीक। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया एज वेल। म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन। टाउन एरिया में म्युनिसिपैलिटी होता है और बड़े शहरों में क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो और इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जैसे म्युनिसिपैलिटी का जो चेयरपर्सन होता है वो म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर साहब होते हैं। इंडिया की जो प्रैक्टिस है इसमें आप देख रहे हैं कि 36 लाख अलग अलग नेता प्रधान पंचायत बन के उभर के आए हैं और उन्होंने लोकल लेवल पे कार्य किए हैं। तो ये एक अच्छा व्यू है डिसेंट्रलाइजेशन का, इस पे काम किया जा रहा है। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, उस पे और भी रिनोवेशन किया जा रहा है और भी काम किया जा रहा है टू अपडेट दिस सिस्टम। चलिए यहीं तक आपका वीडियो है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नोट्स क्या, बाय अंडरलाइनिंग मेथड या वॉट एवर द बुक रीडिंग मेथड, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन देन यू कैनॉट फेस एनी काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन। एंड वन थिंग मोर, आंसर राइटिंग करने पे फोकस कीजिए। चलिए यही तक आपका वीडियो है, मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक से रिलेटेड। जय हिंद।